Now let us discuss the flow chart of aldehyde and ketones and carboxylic acids. This is the third chapter in sequence in organic chemistry from NCERT Part 2 book of class 12th. So this chapter is talking about three functional groups, that is aldehyde, ketones and carboxylic acids. So in this video we will talk about the topics which we are going to cover in this chapter, and you'll have to draw this flow chart so you'll be having a clear idea that what all topics, what all kind of reactions you will be encountering in this chapter. So first topic will be introduction, in which we will talk about all the three types of functional groups and some general important examples of these three. Then we will talk about structure of the carbonyl group, because carbonyl group is what? The C double bond O group is called as carbonyl group, and all the three functional groups, aldehyde, ketones and carboxylic acids, they have carbonyl group present in them. Then the second major topic of ours will be preparation of aldehydes and ketones. How? First method is by oxidation of alcohols. You have already studied in class 11th also, and if we talk, then you have a clear idea that how you can oxidize alcohols and can make aldehyde and ketone using oxidizing agent. And you have studied it in the previous unit here also. The chapter was alcohol, phenols and ethers. So you are going to see so many reactions are repeating. Alcohol, phenol, ethers की कई सारी reactions हैं, especially alcohols की कई सारी reactions हैं जो यहाँ पर repeat होंगी. तो पहला मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, आप क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड और कीटोन. सेकेंड मेथड है बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स. थर्ड मेथड विल बी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. ये मेथड भी आप अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में पढ़ चुके हैं. फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स हाउ? बाय ओजोनोलिसिस. ये रिएक्शन आपने 11th क्लास में भी पढ़ी हुई है, स्पेसिफिकली 11th में ही पढ़ा है ओजोनोलिसिस एल्कीन्स का, जिससे जो है आप एल्डिहाइड्स बना सकते हैं. दूसरा मेथड है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस. हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी ऐड करके. बाय एडिंग वाटर टू एल्काइन यू कैन मेक एल्डिहाइड. सेकेंड इज प्रिपरेशन ऑफ exclusively if we talk about preparation of aldehydes, then first is from acyl chloride, that is acid chloride. Second is from nitriles and esters. nitrile को हम cyanide भी बोलते हैं, फॉर्मूला होता है CN, वो भी एक फंक्शनल ग्रुप है. एस्टर ऑलरेडी यू नो. Then from hydrocarbons, first method is by oxidation of what? Methyl benzene, by the use of chromyl chloride and by use of chromic oxide, right? Then by side chain chlorination followed by hydrolysis and by Gattermann-Koch reaction. ये एक name reaction है, and you know wherever there are name reactions they are important. Then next is we will discuss about the preparation of ketones. पिछले सारे मेथड से हम क्या बनाएंगे? हम एल्डिहाइड बनाएंगे. नेक्स्ट हेडिंग होगी प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, जिसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं. पहला है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, दैट इज एसिड क्लोराइड. नेक्स्ट है फ्रॉम नाइट्राइल्स, दैट इज RCN, जिसको हम साइनाइड भी बोलते हैं. थर्ड है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, एंड फ्रॉम दिस रिएक्शन आप कीटोन बनाएंगे. देन नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. So in physical properties we will talk about boiling point and solubility of aldehydes and ketones. Then we'll be talking about chemical properties. Chemical property का पहला सेक्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. इसके अंदर हम टोटल 5 तरह की रिएक्शंस पढ़ेंगे. पहली होगी एडिशन ऑफ HCN, दूसरी होगी एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड. Then if you see, third is addition of Grignard's reagent. Fourth is addition of alcohols, and the fifth and last under this heading will be addition of ammonia and its derivatives, and it will be important. Then will be reduction reactions. तो हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे. ये फिर से रिपीट हुआ है, आप पढ़ चुके हैं अल्कोहल चैप्टर में. Then reduction of hydrocarbons and formation of aldehydes and ketones. Then वी विल टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तीसरी केमिकल रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें हम
some important टेस्ट पढ़ेंगे, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट एंड हेलोफॉर्म रिएक्शन, दैट इज आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ेंगे. देन रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन के अंदर हम एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे. दीज हेडिंग्स एंड फ्लो चार्ट आई हैव मेड अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स ऑफ एनसीईआरटी बुक. देन अदर रिएक्शंस में हम पढ़ेंगे कैनिजारो रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन में आती है एल्डोल कंडेंसेशन स्पेसिफिकली, और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जिन एल्डिहाइड और कीटोन्स में, वो जो है एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते, वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं. तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब ये सेक्शन आएगा. तो यहां तक की रिएक्शंस काय में आती हैं, ये आती हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स में. किताब में एक्चुअली 2 सेक्शंस हैं. एल्डिहाइड कीटोन्स को एक साथ पढ़ा जाता है, उनकी मोर और लेस केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन के मेथड्स काफी मिलते जुलते हैं, मगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स एकदम से अलग सेक्शन है. तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप का स्ट्रक्चर. देन वी विल टॉक अबाउट प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो प्रिपरेशन में हम बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं अल्कोहल चैप्टर में. देन फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करेंगे. देन फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, नाइट्राइल का फॉर्मूला मैं आपको इसी चैप्टर में फ्लो चार्ट में ही 2-3 बार बता चुकी हूँ, दैट इज RCN, इसे साइनाइड भी कहते हैं. Then amides, RNH2, that is RCONH2, sorry, RNH2 is amine, we are talking about amides. Then Grignard's reagent से हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे. Then from acyl halides and anhydrides हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ेंगे. फिर हम एस्टर्स से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाएंगे. देन वी विल टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. इस सेक्शन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो इनको 2 सेक्शंस में पढ़ेंगे. रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, जहां पे हम एसिडिटी डिस्कस करेंगे, और रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड में हम क्या डिस्कस करेंगे. यहाँ काफी सारी रिएक्शंस है. पहली है फॉर्मेशन ऑफ aniline, then esterification, then reactions with PCl5, PCl3 and so on, then reaction with ammonia. तो ये जो है COH बॉन्ड के क्लीव होने के कारण ये इतनी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे. देन थर्ड सेक्शन में हम इसी में पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू COH ग्रुप, जो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, उसके कारण वो कौन सी रिएक्शन देते हैं. तो इसके अंदर हम रिडक्शन और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पढ़ेंगे. Then last will be the substitution reaction in hydrocarbon. So basically यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम halogenation और ring substitution reactions पढ़ेंगे. So this is the entire flow chart of this chapter. So I hope you have got an idea that aldehyde, ketones and carboxylic acid chapter is having 3 functional groups: aldehydes in detail, ketones in detail and carboxylic acids in detail. So let us start with the chapter topic by topic. So the next topic after the flow chart will be introduction of the chapter. Thank you for watching. I hope the content of the chapter was clear.